Bismillah Rahman Rahim. Um, Hope you're all doing good. Let's get started for today's lecture, day 10. Admit all Irtika, Suman, Muttu, and Muzaif Mufaiz. Okay, everybody put on your cameras. Let me see everyone on the camera firstly. Everyone should be having the cameras, okay? Everyone put on your cameras. Admit. I must repeat that you all need to be online and you all need to be, putting on the cameras and don't missing the lectures because every inch of we read is linked together, okay? Whatever we are reading, it is linked together with the next lecture we do, okay? Why is it not coding up? So, no matter what you do, each and every day we plug in the pieces basically together. We are trying to plug in the pieces. So there are people who are without camera. Javed Qureshi, uh, Salim, but your camera is too dark. I can't see you. Anyways, there are people on the camera. There are some girls not with the camera. And I will scrutinize people later who are with the camera and who are not. Everybody is with the camera. That's nice because there should be the interaction, some sort of interaction. So what I'm telling you is it's very important. I'm seeing this. Some students join one day and then they skip classes. Then they come another day. Likewise, we got a 40 students, and I try to keep it very late so that everybody is back home. And now you must have taken the dinner and you are just about to sleep. So there's nothing to do. That's why I'm keeping it late, so that there are all engagements being done. So you don't have any engagements other than having this lecture and sleep over it. Okay, so that is why I'm keeping it a little late. Otherwise, I could have kept it down 8 and all. So I'm getting it closer to the 9:30 so that there will be no engagements, so that there will be maximum participations. Okay, Javed, no issues. Javed is saying his webcam is having issues. No problem. There are some people whose webcams are not working and all. That's all right, but they have to interact. I'm keeping it 9. Is 9:30 okay if I keep it on 9:30, because I want to have a maximum participation so that there will be no because there are people who are having engagements, they're coming back home or they're doing something, there are dinner issues. Okay, मेरे ख्याल से 9:30 से तो डिनर सबका ख़त्म होता होगा. So अगर तू 9:30 पाते खे तेल चो ओके, you should finish it before 9:30, I guess. So that's why I'm keeping it. It's not late because you have to sleep 9:30. Give it to up to 10:30, 9:30 to 10:30. Keep it open, this slot, and um, we will be good to go. But I'm telling you that you have to do the assignments and you have to be regular and understanding each bit, because every day we refine it, because today we will do something, right? It's not necessary that you understand each and every bit of it, but next day when I come to the CSS, I'm going to refine each and everything. It is going to be refining and refining till you get 100% concept in the brain. Okay, so that means being regular is very, very important, and I'm trying to have some use cases, not teaching conventional tags and all, and that's on. I'm trying to do some use cases all the time, which makes little difference, so you can have it. So we are dealing with right now with the video tag. Okay, we have done images, but we have to do more on images. We want to I have told you to keep this format of day 10, that image. I have already downloaded some image, Ramadan Mubarak, from the Pexel to save my time, and a video, okay, from Ramadan Mubarak again, which you can play, and you can have any video you like, just any random video. I just got it from the Pexel, and the Pexel is where you actually get the videos. You should not, as a developer, remember this point. You are not sharing your screen. I'm not getting what? You are not sharing your screen. Oh, I'm not sharing a screen. Thank you. What I am saying, I just want to see first the beautiful faces of everybody. That is why I
Stop it sharing the screen. Now share it. Now I have down, this is the structure I told you, it's the images folder. I created it in day 10 folder on a desktop. Then in the images folder, I got one image, right? Any image you like, and styles.css, okay, in the style folder, and a vids folder, I got the ramadan.mp4 that is being downloaded from Pexel. What I was telling you is very important, that you should not download any video which is not free to download. Okay, you should never use anything in your project which is somebody else. You can't steal somebody else's work. So you have, the Pexel is giving you the free downloads, or Unsplash, I told you. There are the people who take the pictures and put up free for you, so you can download freely. You don't have to steal somebody's pictures and somebody's videos, because that will be, if you tomorrow use your any picture that's a proprietary, you can land into some trouble. You understand? So because you sell your site tomorrow, and then it comes that these pictures or these animations or these videos is somebody else's property, then you can land into jail. So better is not to use them. We have tremendous amount of free resources on internet. I told you one, that's the pexels.com, where you can get photos and videos, and Unsplash, where you get tons of videos and wallpapers and everything you like. And then there is Awesome Font, where you can get the the small icons and all. We can get it from that. Okay, we will see a little bit today how to get those things, but not completely. We will see it later on. So I am talking about the video tag, but I want to ask you a question. If the video tag is introduced in HTML 5.0, right? What were people doing before that? Because HTML5, we got the pixel tag, the video tag, sorry, right? It's HTML 5.0, the draw. We got in the HTML 5.0, we got the video tag, where you can load the videos. For example, you have a news service. You have the news, and you want to have those different kinds of newses in your page. Okay, now we use the video tag. We have the video tag in a 5.0. What were the people doing before 5.0? I'm asking you the question. Use the embed Absolutely. Adobe Absolutely. That's great, Sohail. We had an embed, okay, which has a long code to put it into our site. Then that video can get played into our website, and we needed not only to embed, we also needed to play it. Embed will embed that video on our page, but we needed some players, the plugins, which will play that video, like we had the Adobe Flash, which was playing that video. Now we don't need to embed now. We don't need the Flash. Everything is in out of box, because we got the video tag. So let's cut this short, and we create a video tag in our index file. So everybody go on an index file. Okay, do with me. It's important you do with me. Okay. Now here, I may say the title is like what? Learning video. Okay. Excuse me. Now here I got a video tag. I'm just first understand the video tag, then we do things. Why is it all capital? Write the video, say VI, and just enter. Okay. Now it's giving me the source. The first thing is source. That is what is the source of video. For example, I have got one video downloaded already in the vids folder. So I will say V. I just say V. It gives me the option. I press enter. And it's giving me the option, the Ramadan. I press enter. I am done. The video is loaded. Now if I go on the page to play it, it has to be I don't know why it's not playing. Just dispose of it and go live. Okay, I'm going live. The video is coming. Okay, it is the big video. The size is beyond the screen, and there are no controls. As you could see, there is no play button, there is no pause button, there is nothing else on this video. Okay, so I would like to first make it size proper. Okay,
So maybe I will say height. I'm saying height of let the VS Code write, okay? So you say HE, it will give you, press enter. Height of, say, I'm saying 800 pixel, and width, maybe I say width also. Width of, press enter, so that it writes is equal to, in double quotes and all. So width is equal to, say, 600 pixels, or maybe 800 pixels. Why not put width also 800 pixels? Okay, now I got the 8 by 8, so I need increase the width. Maybe I got it down to 600 height, and this one to 1000 pixel. Okay, now it won't go, because the video player is bigger, but the video in itself has a dimensions lesser. That's why it's not getting me the width. The video player is, I will show you, you will see it when you get the controls, because there is no controls in it how to play it. So I can say controls, say, oh, it's messed up with the height. Go back and say control space and say controls. Now go here and you will see the controls. See now that this is the video player. The video is this much big, but the your dimensions of the video were small. That's why it was not spanning, because it's a small video. Anyways, we got the width and height and all. And here you see all the controls, like you got play. You want to play this video, you can have a play, you can pause it, you can mute it, you can maximize it, okay? And you can even have these three dots where you can download it. You press the download, you get downloaded in the download folder, and you can choose the playback speed like double X and one whatever. It's all given out of box. You don't have to do any even a single line of code for this. And you have everything, picture in picture, what you have in a YouTube, all those things, only by putting up the controls here. Okay, I said here where, oh, it's gone down like this. The pretty is working, the prettier is working to make it prettier. So it's a controls, so it's making it what, it's making all the controls there. Maybe I want that it should loop, that after I finish playing it, say for example it went here, after that it should again play it like GIF. Okay, I can do that using the loop. Maybe I want that, like YouTube has always the thumbnails. You have some YouTube video, and then there is always a thumbnail on the video, some picture which they put on a video, which comes up front, and when you play the video starts, but some picture you can put up. So we have here what's called the poster. So the poster actually can put up any picture you like as a poster picture, as a thumbnail to it. So I will say poster, and I have the images folder. I don't know what you have called your folder, images. Okay, you all the time call images as images, where you put the images. Style, you put the style. Script, where you put the JavaScript, and widths and index outside. Keep always this format. Okay, so I say images, enter, and there is a Ramadan.jpg. Okay, enter. Now if you give it a go, now you see that picture thumbnail is coming on a video. Now if you play the video will play. Okay, but that poster comes on top of it. Does it make sense? Okay, now you want autoplay. Maybe you say autoplay. You say what? Autoplay, that when you go to the page it should play automatically. Okay, let me first refresh this page. It goes there, but it's not playing autoplay, right? Why is it not playing? Because the Chrome policy is that if you have an autoplay, it should be muted. It can't be autoplay without mute. So therefore you put up the muted also with it. Now if you say like this, you go here in my browser, it's playing automatically. Okay, you don't have to press the play button. When you refresh it, say for example you refresh it, it's playing automatically. Okay, if you want to have some videos going on there, which is playing automatically and looping back and forth, you can do that, right? So if it goes up to the end, and it will automatically come back and starts playing again. So that is what is the loop doing. This is what is the loop doing. Okay. So we got the height, we got the width, we got the controls, we got the loop, we got the poster, we got the autoplay, and we got muted. Right now I have only these things in my mind, but I guess it has many more, couple of at least
controls, on this, which I am totally out of my brain this time. I'm not getting what are those. Even the name of that मुझे याद नहीं आ रहा. इसके अभी दो और attributes हैं. Okay, put up that as your assignment. What are the I guess couple more. There are some. मुझे इस वक्त वो याद भी नहीं आ रहे होंगे. मुझे पता है कि इसमें है और ठीक है ना. अभी you have done it. You are done with this. Copy किया इसको, हो गया ये, दिख रहा है. Because I am going to delete all this because we want to do some project where I will give you a little taste of also the JavaScript, is where we will use the JavaScript and why we use the JavaScript. Because without JavaScript, our websites are dead. They are pretty dead. They're static. They're nothing. Okay, that we will learn later. It will take at least maybe 1 month down the lane when we start our JavaScript journey, which is a full-blown programming. Now, are you done with it? Then I will say Control A, Command A here, and delete. Now I go again and I say Shift. You can just comment it out. For you guys, don't need to delete that. For you, just comment that out using the select everything and Command or Control / to comment that out. You should be doing with me, right? Everybody doing with me or not? Now here I'm saying pop-up video. Maybe I name it pop-up video. Okay. I have actually, this is not, this is the use case, but it has, a lot of things to learn actually. For the learning purposes where we learn many things. So in the body, everybody with the body now? Okay. In the body section, what you will do is you will create some, we will have a couple of sections here. We have one section and second section. In first section, we have the image and we have some heading and text. And in the next section, we are going to have a video. But we are going to have a button. On the click of the button should be video done. And if video should be hidden. Okay. And on the click of a button, video will be done. But we can't do that because it's a JavaScript. But I just want to make it, you understand how JavaScript work. But later on, we will do that on the click of button as well. But let's have run on it. That I'm having one here section in the body. What will be that called? Say we can call it as a section. We can have the main. Maybe I call it as a main. Okay, I say main. Write main. Then say dot. After main, write dot. Then again write the main. And then minus hyphen container. This is my main container. Okay. When I press enter, it will create the main tag with the class main container. This is my main container where I'm gonna have some picture and also some what? You can have some picture or you can have and also some h1 tag and all. So if I want to load the image, if at all I want to load what? Image. Where from will you get that image? You can get the image from the Ramadan.jpg, right? Or you can directly go to the pixels. There you right click, okay, and you say copy image address. We can do a couple of ways. Like for example, we go to the pixels. Let me go to get it here or here maybe. I say pixels.com and I go to the pixels and I say here Ramadan, Ramadan. Okay. Any picture you like. Oh my god, what I'm writing, it's still writing Ramadan. Okay, for example, I want to have this beautiful couple, or maybe I want to have this prayers, beautiful prayers here going on, or something else. Maybe this rug, or maybe this dua. This is beautiful. Okay, can I say here copy image address? First I need to open it, I guess, right? I can download it also, but I can say copy image address directly. Okay, then I go to my here in the main. This is my main. I got here one image tag, img, image tag. We have done it, and control V here. Okay, this is directly from the site I am getting. Okay, I won't do it like this, but because I have already downloaded Ramadan.jpg, but just
for the sake of showing that you can have any image, you right click and copy the image address, and then you can put on here. Okay, you can put the alternate text. What was that? Prayers or something? Prayers. Okay, now if I go here on a browser, I'm getting that picture here. Oh no, it's not. It's the pixel site. Okay, well, this is my video. This is the pop-up video. Okay, here I got this picture, right? Getting? So you can do this way also, but I won't do this way. Rather, I will do like, because I have already here, just let me clear the clutter here. I say image img and press enter, and a source, I got images. I already got the images. In the image, I got the ramadan.jpg. Now if you give it a go, and I got the ramadan.jpg, it has to come, but there is some issues. I don't know why. What are the issues? I have done something wrong. Image tag, and I say source is equal to images slash ramadan. It's perfect. So why it is not working? Pop-up video. I guess that there. What I have Sir, done? actually it is working. ये बहुत बड़ा आ रहा है. कौन बना रहा है? Zoom out. Image बहुत बड़ी आ रही है. आप नहीं zoom नहीं, ये out तो कीजिए. बहुत ज़्यादा बड़ी है ही नहीं इमेज, तो हम इसको बड़ी भी कर भी सकते हैं. शॉर्ट, I can say it height or something, or width of something. Let me put the width. Okay, images ramadan.jpg. I'm just going to image source is equal to this. Okay, now perfect. Control this. आपको कौन सी इमेज आ रही है बड़ी? जो मैंने इमेज डाली है ramadan.jpg. आप वही कह रहे हो? नहीं सर, आपको विजिबल हो रहा था. आपने वो बड़ी आ रही थी इमेज, इसलिए आपको नहीं विजिबल हो रही है वहाँ पे. हाँ, कुछ गड़बड़ था. अच्छा ठीक ठीक. Yes, that's the white background is coming back. Yes, here I got it. Okay, it's too big. I think the image that's gone too big. Okay. Anyways, I got the width, that's 600 pixel, but I don't want to do the width here and all. But for time being, I'm just keeping it here. Okay. And alternate text is it's the Ramadan or something you want to like, because we have understood the alternate text is for the accessibility for the screen readers. Screen readers read from the alternate text. So I got the image tag here, which is what? Which is either I will use the direct site address, or I can use the static image which is in my folder. Better is to put over here, because if there is no internet, then your site won't work if it is static. Okay. Okay, and I'm getting here the h1 tag. Okay, but I'm saying image, that is my source, and I got the h1 tag, and maybe I will say Ramadan Kareem. Write down the h1 tag and say Ramadan Kareem, and I got a p tag, for example, here, and I put up something about the Ramadan, definitely times 2, maybe this is about the Ramadan stuff and all. So it will come somewhere. It's coming here, right? And as you could see, there is that the default margins and paddings. I would really remove that. We know that we will do that in a CSS. So right now what I'm doing is, in the main, I got a main box. This is the box, container box, which contain my image. Okay, and I got an h1 tag, and I got what? The p tag. And at the end, I will create a button. Because I want to click a button, images should vanish and the video should come. This is the theme. Okay, on the click of a button. But I'm not going to do it right now because we don't know JavaScript, but I'm just giving you the taste of what will JavaScript do, because the logic, if you want to build logic, you have to use the JavaScript. Now for the button, what I will tell you to write here is, after p tag is, you write the button, button. Okay, then I want to create this button with the class of btn, for example. Then I say dot btn, because see, if I say only just directly dot btn, what will it do? If I say dot btn, it will create a div for me. It will create a div with the class btn. But I'm not doing that. I want button with the class. So I want button with the class btn, and inside then I put up the braces
then put up the braces, say button, then dot btn, put up the braces, and in the braces you want to see what you want to show. So maybe you say show Ramadan, I don't know, whatever you want to say. सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। मेरा स्क्रीन तो शेयरिंग है, इज तो इट? नहीं, आपका स्क्रीन आ रहा है, इनको प्रॉब्लम। आ रहा है। My screen, I'm sharing the screen. I think you have some issues. So मैंने क्या किया यहाँ पे काम, देखिए इसने बटन बनाया, उसका क्लास लगाया btn डबल कोट्स में इज इक्वल लगा के, और बीच में जो कंटेंट लगाना होता है ना कि आप बटन में क्या दिखाना चाहते हो, और वो भी आ गया प्रॉपरली, और बटन क्लोज भी हो गया। और मैंने किया क्या, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे जिस टैग का मुझे क्लास लगाना है, जो भी लगाना है क्लास के लिए डॉट, और अगर मेरे बटन लगाना है या कोई इमेज लगानी थी या कोई चीज़, तो मैं वो लिखूँगा। जैसे मुझे बटन पे करना तो मैं लिखूँगा बटन और डॉट कि क्या क्लास लगाना चाहते हो आप, जब तो btn, फिर जो उसके अंदर जो टेक्स्ट लगाना चाहते हो वो पेरेंसेस में, ब्रेसेस में लगाओगे आप, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा शो वीडियो, क्या लिखा था मैंने, शो रमदान, ठीक है ना। एंटर मारोगे तो ये प्रॉपर बटन बनाएगा, उसका क्लास btn रखेगा, और उसका टेक्स्ट जो उसमें आएगा वो शो रमदान होगा। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो एक बटन आएगा, ठीक है, ये बटन आ गया बड़ा अगली सा, उसका शो रमदान आ गया उसमें लिखा हुआ, ठीक है। अब इसके ऊपर हम CSS लगा के इन चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरा किस्सा बाकी है, ताकि मैं दूसरा बॉक्स लगाऊं, क्योंकि आई टोल्ड यू दैट आई हैव 2 boxes in a one box. This is my one box of the main is the main container box, which is having one image, okay, which is having one h1 tag and one p tag, okay, and a button with the class btn. So अगर मुझे इसको बटन को पकड़ना होगा I have to use dot btn, अगर मुझको मेन क्लास को पकड़ना होगा I have to use dot main container, ठीक है ना। ठीक हो गया, anybody having any issues in it? सबको हो गया सर ये, फिर मुझे से बताएं रिपीट कीजिए, जी। फिर से रिपीट। कौन सी चीज़? ये बटन अगर इसको करना होगा, क्या? इस वाले ऊपर मेन को। अगर बटन को आपको स्टाइल करना होगा, इसका नाम पड़ गया btn, उसका क्लास जो इसका नाम पड़ गया, क्या पड़ गया, btn। तो इसको मैं CSS में डॉट btn लिखूंगा, तो उसका जो उसके अंदर जो स्टाइल करूंगा वो इस बटन के ऊपर आ जाएगा। होगा। क्लियर? यस सर। अगर इफ नॉट क्लियर डोंट वरी, आस्क नो क्वेश्चंस। आगे सर। ओके, मैं अभी दिखाऊंगा ना ये करके, तो आपको पता चलेगा फिर अच्छे से। बट डोंट वरी इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपरली, बिकॉज CSS हम अच्छे से पकड़ने वाले हैं ना बिगनिंग से, उसमें मैं प्रॉपरली ये डॉट्स, ये हैशेस, ये एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली, ओके ओके। अब मैं एक और सेक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, मे बी आई विल गॉट अ सेक्शन, आई विल यूज अ सेक्शन। अब मुझे सेक्शन बनाना है और इसका इसमें वीडियो डालना है मुझे, और मैं चाहता हूँ कि इसका क्लास नेम हो विड कंटेनर। इसका नाम क्लास नेम क्या हो, विड, या तो मैं लिखूंगा सेक्शन टैग शुरू करूंगा, फिर लिखूंगा क्लास इज इक्वल डबल कोट्स, उसमें लिखूंगा विड कंटेनर। जैसे मैं ये लिखूंगा बटन, फिर लिखूंगा क्लास इज इक्वल btn, लेकिन मैंने शॉर्ट में क्या किया, मैं लिखा बटन और डॉट btn, है ना। इस तरह से मेरे को सेक्शन बनाना है, और उसका मुझे क्या बनाना है, क्लास btn कंटेनर। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, सो आई विल राइट डॉट, देन आई विल से btn hyphen container, and when I say enter it will create a section with the class btn container, ठीक है ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यस सर। अभी तक मैंने 2 किया, एक तो मेन मैंने किया, एक बॉक्स मेरा ये है मेन वाला बॉक्स, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक है, उसमें एक इमेज टैग है, एक h1 टैग है और एक p टैग है। तो याद रखें क्योंकि हमें इनको सबको स्टाइल करना है फिर। और यहाँ पे सेक्शन मेरा जो है, जो मैंने btn कंटेनर यहाँ पे किया, इसमें मैं क्या डालना चाहता हूँ, वीडियो, इसमें डालना चाहता हूँ मैं वीडियो। सो मैं एक वीडियो टैग लगाऊंगा इसमें, आई विल पुट अ वीडियो टैग, ठीक है ना। उसका सोर्स कौन है मेरा, वही वीडियो में जो है यहाँ पर है मेरा विड्स में मेरा वीडियो बैठा है ना। अरे कहाँ लिखा मैंने, सोर्स यानी कि कहाँ पे वीडियो है, वो विड्स में है। एंटर मारे और वहाँ पे ramadan.mp4 है, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ एक क्रॉस बटन आए। अब उसके बहुत सारे तरीके हैं, आप क्रॉस बटन जो है ना, एक क्रॉस आइकन आप लाओगे, या तो आप अपना बनाओगे और वो आइकन्स आपका फोल्डर होगा उसमें डालोगे, या आपको
एक और तरीका है आइकन्स लाने का, वो ये है कि मैं यहाँ पे आप ब्राउज़र खोलें और आप फॉन्ट एवसम लिखें। आप फॉन्ट एवसम लिखें और फॉन्ट एवसम में जब लिखेंगे वहाँ पे आइकन्स आएगा, आइकन्स पे क्लिक करें। अपने फॉन्ट एवसम लिखना है, फॉन्ट एवसम पे आपने क्लिक करना। हालांकि हम फॉन्ट अपने भी बना सकते हैं बाद में और वो रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको रेडीमेड फॉन्ट चाहिए, आप कहाँ से लाओगे आप, तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉन्ट एवसम पे आप जाएं और फॉन्ट एवसम में आइकन्स सर्च करें। या तो यहाँ पे डायरेक्ट आप आइकन्स देखें, यहाँ पे जो आइकन्स यहाँ पे हैं उसको क्लिक करें यहाँ पे, ठीक है। या वहाँ से ही गूगल में आप आइकन्स पे क्लिक करें। अगर आप फॉन्ट एवसम पे डायरेक्ट आ गए हैं तो आइकन्स पे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्रॉस बटन चाहिए ना, तो उसको टाइम्स बोलते हैं। तो टाइम्स मारें, आप टाइम्स लिखें और एंटर मारें। अब जो टाइम्स में है ना, आपको तरह तरह के किस्म के क्रॉस बटन्स मिलेंगे यहाँ पे। तो आप जो आपकी मर्ज़ी है, जैसे कोई भी है आपको, जैसे मैं ये वाला उठाता हूँ, ये जो सर्कल एक्स मार्क है ना, ये मैं इस प्रो वाले पे इस पर क्लिक करूँगा तो ये खुलेगा यहाँ पे। ओके, इसमें भी हम चेंज कर सकते कि भाई ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और थोड़ा नीचे जाएं और जो ये यहाँ पे लिखा है ना, आई क्लास एफ ए शार्प एफ ए सॉलिड एफ ए सर्कल एक्स मार्क, इस पर क्लिक करें खाली, ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? आई विल रिपीट द स्टेप्स। आपको गूगल के अंदर फॉन्ट एवसम सर्च करना है, वहाँ आइकन्स पे जाना है, ठीक है। फॉन्ट एवसम सर्च करके आइकन्स पे जाएं, यहाँ पे या वहीं पे आइकन्स पे, यहाँ पे ऊपर टैब है आइकन्स पे, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे टाइम्स लिखें आप, जो आप जिस चीज़ का आप ये ढूंढना चाहते हैं और जो आपकी मर्ज़ी है उस पर आइकन पे क्लिक करें, ठीक है। और उसमें भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो आपको मर्ज़ी हैं उस पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करें जो ये आई क्लास है, जो आई टैग है, उसके बाद क्लास इसका ये है, इसका क्लास बहुत सारे, इसने 1 2 3 नाम दिए हैं क्लास के। इसको क्लिक करने से ये कॉपी हो जाएगा। फिर आप अपने प्रोजेक्ट पे वापस आएँ और यहाँ जो वीडियो टैग है उसको नीचे इस सेक्शन में ही, इस सेक्शन में वीडियो टैग के नीचे इस चीज़ को पेस्ट करें। ठीक हो गया? तो जब हम अपने इस प्रोजेक्ट पे आएंगे, यहाँ पे जो पॉपअप वीडियो है यहाँ पे, तो वहाँ आप देख रहे हो ये वीडियो आ गया है और कहीं ना कहीं नीचे से आपको वो क्रॉस मिलेगा। मुझे तो दिख ही नहीं रहा कहाँ पर है, शो रमज़ान एंड ऑल, क्योंकि पिक्चर वीडियो बहुत बड़ा है। तो मेरा ख्याल है उसके नीचे साइड में होगा, यहाँ पे नीचे मेरा। सर एक्चुअली फॉन्ट्स ऑसम का सीडीएन लिंक आपने लिंक नहीं किया। ओह यस, दैट्स वेरी गुड, एब्सोल्युटली। क्योंकि मैंने सीडीएन तो लिंक ही नहीं किया, तो वो कैसे आ जाएगा इसमें? एब्सोल्युटली, क्योंकि वेरी गुड। ये किसने बोला? हु सेड दिस? क्योंकि अगर हम कोई सीएसएस में कोई काम करते हैं, ठीक है ना, तो पहले वो सीएसएस तो लिंक होना चाहिए। और जो फॉन्ट एवसम है, ये फॉन्ट एवसम का ये चीज़ है, तो पहले फॉन्ट एवसम का जो साइट है उसको लिंक करना पड़ेगा ना हमारे अपने इस प्रोजेक्ट के साथ, है कि नहीं? सो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप ब्राउज़र में जाओगे, ओके, और यहाँ पे आप CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से बोलते हैं JS, इसको प्रेस करोगे, CDN JS। और CDN JS में आप क्या करोगे? फॉन्ट एवसम सर्च करोगे, ये आ गया फॉन्ट एवसम, ठीक है। ये फॉन्ट एवसम का CDN, यानी कि जहाँ पे आपने, जैसे आपका CSS हो गया, आपने CSS लिखा तो आपको CSS एक्सटर्नल फाइल वो तो लिंक करनी पड़ेगी ना अपने इस प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पे फॉन्ट एवसम जो है उसका CDN, यानी कि उसकी क्या, CDN का कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का मतलब है कि उसकी लिंक क्या है, कहाँ पर है ये लिखा हुआ, जहाँ पे जो आपने ये आई टैग वगैरह किया ताकि वो रेंडर हो। और पहली वाली जो लिंक है ना उसको कॉपी करें, यहाँ पे कॉपी लिंक टैग, जो बीच वाला यहाँ पे है ना टैग, इसको कॉपी करें, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आप फॉन्ट एवसम जो है उसके ऊपर आप फॉन्ट एवसम नहीं, मैं फिर से दिखाता हूँ, आप क्या लिखेंगे? CDN जावास्क्रिप्ट JS। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कौन सा चाहिए, आपको किसका चाहिए? jQuery का चाहिए, बूटस्ट्रैप का चाहिए? ना जी ना, मुझे फॉन्ट एवसम का चाहिए, क्योंकि मैं फॉन्ट एवसम का आइकन मैंने इस्तेमाल किया है अपने प्रोजेक्ट में। जो पहली वाली लिंक है फॉन्ट एवसम की, उसका लिंक टैग कॉपी करें। हो गया?
तो जिस तरह से अब आप CSS लिंक कर रहे थे, यहाँ टाइटल के नीचे या ऊपर आके कमांड V कॉपी करें। अब क्या हो गया कि फॉन्ट एब्सम का जो CSS है वहाँ पे वो आ गया, आपके लिंक हो गया आपके प्रोजेक्ट के साथ, और आपने जो फॉन्ट एब्सम का ये जो चीज़ इस्तेमाल किया है ये वहाँ से आके आपको शो करेगा अपने प्रोजेक्ट में। नाउ इट शुड शो अप, द क्रॉस शुड शो अप समवेयर, इट इज़ शोइंग अप ऑन द बॉटम स्टिल बट इट्स गेटिंग अंडर माई दैट, जो मेरा यहाँ ना ये पॉपअप है, it's coming there. If I decrease the size of the video, it will show. I will decrease the size of the video. Maybe I will put up here the size, width or height. I will say height is equal to 500 pixel. Okay. Now let us see. फिर भी ज़्यादा हाइट हो गई, इसको 200 पिक्सल कर लेते हैं ताकि हमें दिखे हों। ठीक है, ये यहाँ पे क्योंकि मेरा ये ऊपर से ये आ रहा है ना, तो इसलिए पता नहीं आपको स्क्रीन पे आ रहा है मुझे। हाँ, ये देखो यहाँ पे आ गया ना ये क्रॉस। ठीक है, जो आपका आइकन, जो मैं क्रॉस बटन वहाँ से लाया था आइकन, वो अब शो कर गया। अभी हमारा बिल्कुल कुछ है नहीं क्योंकि हमारा CSS हमने किया नहीं। लेकिन अगर मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, ये जो वाला ये चीज़ है इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिटिल बिट मेक इट लिटिल बिगर, देन आई हैव टू यूज़ वन मोर क्लास। वो ये जो क्लास है ये मैं खुद का नहीं लिखूंगा, ये मैं वही लिखूंगा जो फॉन्ट एब्सम ने स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, बात में आ रही है। सो व्हाट आई विल राइट इज आई विल से फॉन्ट एब्सम, देन आई से हाइफन, देन आई से, क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं भी 2x करना चाहता हूँ इसको, डबल। सो नाउ इट विल बी बिगर एज यू कुड सी नाउ ऑन द बॉटम हियर, राइट। लेकिन जो मैंने ये फॉन्ट एब्सम का लगा, ये मेरा अपना नहीं लगा सकता मैं, ये क्लास, ये मैंने एक क्लास है ये FA2X, इस क्लास को पकड़ा होगा फॉन्ट एब्सम ने अपनी CSS फाइल में, जिसमें लिखा होगा .FA2X, और उसमें इसने साइज इंक्रीज किया होगा, और वो लिखा हुआ है। आप रेडीमेड इस्तेमाल कर रहे हो, बात समझ आ रही है कि मैंने CSS फाइल नहीं बनाऊंगा मैं अभी, यहाँ पर CSS फाइल, उसमें मैं कोई चीज़ करूँगा, जैसे मैं BTN पे काम करूँगा वो हो जाएगा। इसी तरह से फॉन्ट एब्सम ने ये काम किया हुआ है। ठीक है, और आप उनका काम जो है जो किया हुआ है वो इसीलिए वो लिंक कर रहे थे हम, इसीलिए हमने यहाँ पे जो है फॉन्ट एब्सम को लिंक किया, ताकि मैं उनका जो वो CSS है ना वो यहाँ पे लाऊं। हमारे पास दो तरीके होते हैं, या हम उनकी जो वो CSS है या जावास्क्रिप्ट है या कोई और चीज़ है उनको सीधे डाउनलोड करें और अपने इसमें रखें, या दूसरा है कि मैं डायरेक्ट उनके लिंक पे जाऊंगा, http://cdnjs cloudflare.com ajax library font, यानी कि मैं बिल्कुल उनकी सर्वर पे जाके मोल फैच कर रहा हूँ। या दूसरा होता है कि आप CDN नहीं बल्कि आप डाउनलोड ही करो और फिर वो अपने इस प्रोजेक्ट में रखो और फिर लिंक करो सीधे, जैसे हम ये CSS करेंगे लिंक। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन इन दैट? एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चंस इन दिस? हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें, बोले जल्दी, तब तक मैं एक ब्लैक चॉकलेट का थोड़ा सा एक पीस खाता हूँ, जैनू के, जैनू का था, मैं चोरी करता हूँ तब तक। एनीवन हैविंग एनी इश्यूज? ये समझ आ गया ये क्या मैं कर रहा हूँ? ओके, आधे मुंडी हिला रहे हैं तो उसका मतलब समझ आ गया। अगर किसी को समझ नहीं आया वो पूछे, मैं बताऊँगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, कुछ चैट में कुछ आ रहा है, काइंडली शेयर द स्क्रीन। ओके, स्कोर खबर कर। ठीक है, तो हमारा जब ये हो गया तो हम CSS पे आ जाएंगे। अब हम सीधे आएंगे CSS पे। करना क्या चाह रहा हूँ मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मेरा ये रमज़ान करीम है, बिल्कुल बीच में आए, एक ब्लैक बैकग्राउंड हो और ये अच्छे से बीच में आए, स्क्रीन के बीच में आए बिल्कुल, और फिर ये रमज़ान करीम आए बीच में, और फिर उसका टेक्स्ट आए और शो रमज़ान बटन। जब मैं शो रमज़ान बटन पे क्लिक करूँगा उसके बाद ये वीडियो आना चाहिए इसके ऊपर, और जब मैं क्रॉस दबाऊंगा वीडियो गायब होना चाहिए और मेरा पिक्चर आना चाहिए। ये असल में हमारा सिनेरियो है। ठीक है, ये मैं करना चाह रहा हूँ। एवरीबडी क्लियर विद दिस? सो हम अब करेंगे शुरू अपना CSS। तो पहला काम क्या करते हैं CSS में पाजी, हम बोलते हैं सबको पकड़ो, मतलब स्टार, उसमें जो पैडिंग है वो 0 कर दो, ऑटो नहीं 0 कर दो, नंबर राइट 0 पिक्सल। जब आपका 0 है सिर्फ 0 लिखें,
मार्जिन उसको भी 0 करते हैं। हाँ जी, और क्या करते थे हम इसमें, बताए कोई? बॉक्स साइजिंग, border box. exactly. Open up the, you should be talking more about Font family, system, UI. font family. मैं sans serif लिखता हूँ, जो आपकी मर्जी है। बाद Font में भी- गूगल फॉन्ट्स करेंगे इस्तेमाल लास्ट में। इतना काफ़ी है, और करेंगे कुछ ना। बॉडी और HTML को पकड़ेंगे, तो मैं बॉडी टैग लिख रहा हूँ, बॉडी टैग को। हाँ जी, मैं चाहता हूँ सारा बीच में आ जाए। क्या चाह रहा हूँ? सारा आ जाए बीच में, बिल्कुल बीच में आ जाए। तो मैं असल में जब हम CSS करते हैं ना, उसमें बहुत सारे लेआउट्स हैं। जैसे मैं आपको ग्रिड बता रहा था, आपको फ्लैक्स बता रहा था, ठीक है। तो उसमें जो हम कर रहे हैं ना, कि हर एक चीज़ को सेंटर लाने के लिए हम बहुत काम कर रहे थे। जैसे हमने कल लगाया, स्पैन लगाया डिव के अंदर, फिर इसको बीच में लाया एंड ऑल दैट। सो काम उस तरह से नहीं होता। असल में काम होता है यूजिंग द फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड और समथिंग एल्स। सो हम आज ग्रिड लगाएंगे, हालांकि हम ग्रिड को बाद में ना फ्लैक्स को लगाएंगे, हालांकि फ्लैक्स बॉक्स हम बाद में समझेंगे इन डिटेल। लेकिन आपको ये दिमाग में थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा भाई साहब, आप डिस्प्ले जो है ना वो फ्लैक्स लगा दो। हालांकि बहुत सारे डिस्प्ले, अगर आप देखोगे कितने डिस्प्लेज हैं, ब्लॉक हैं, कंटेंट्स हैं। नॉर्मली आपका ब्लॉक ही होता है, ठीक है। यानी कि ब्लॉक का मतलब है कि आपने कोई चीज़ डाली, ये पूरी जगह पकड़ेगा, पूरा ब्लॉक ही पकड़ेगा, फिर दूसरी चीज़ उसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई एक काम करो, फ्लैक्स करो, फ्लैक्स बॉक्स ही मत करो, फ्लैक्स करो। क्या करो? फ्लैक्स, लेआउट फ्लैक्स करो। बस ये लेआउट है जो आपको नाम देना है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करके आप चीज़ों को रख सकते हो। जैसे आपने कहा कि भाई साहब आप एब्सोल्यूट रखो, आप रिलेटिव रखो, फिर एब्सोल्यूट से मैं मूव कर सकता हूँ ना, टॉप बॉटम, उधर इधर दाएं बाएं घुमा सकता हूँ। इस तरह मैंने कहा फ्लैक्स रखो, ये फ्लैक्स बॉक्स की तरह काम करेगा। और आप इसका फिर जस्टिफाई जो कंटेंट है वो सेंटर कर दो, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट, मैं मगर पूरी बॉडी का कर रहा हूँ, ये मैं खाली इमेज टैग का और उसका नहीं कर रहा हूँ, यानी कि सब पे लागू हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो दूसरा एक दूसरे के ऊपर चिपक जाए, ताकि वो दिखे ना, वो नीचे नहीं आना चाहिए। ऊपर एक जो पिक्चर है, वो जो वीडियो है वो नीचे नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर ही आना चाहिए, ताकि तब मैं एक को छुपा के एक इसको विजिबल करूँगा या उसको इनविजिबल हाइड करूँगा। हाइट कितनी रखोगे आप? मैं कहूँगा भाई हाइट तो एक काम कर, जितना तेरा व्यू पोर्ट है ना उसका 100 रख। व्यू पोर्ट हाइट जो है उसका 100% रख, ठीक है। और अलाइन कर आइटम्स, अलाइन आइटम्स करो आप सेंटर में। नाइस। और क्या करें? बैकग्राउंड कलर रखो, बैकग्राउंड कलर बिल्कुल ब्लैक आना चाहिए ताकि वो परफेक्ट दिखे हमें, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक जब आता है ना तो चीज़ें दिखती है। तो इसने अप्लाई क्यों नहीं किया अभी? ओके, क्योंकि बॉडी टैग पे लिंक नहीं किया होगा। ओ हमने CSS लिंक ही नहीं किया भाई। हम तो कभी फॉन्ट एसम लिंक करना भूल जाते हैं, तो कभी CSS भूल जाते हैं। तो बटा फटाफट CSS कैसे लिंक करेंगे हम? लिंक में जाके उसकी लोकेशन टाइटल के ऊपर करेंगे हम, हाँ? या टाइटल के नीचे ही करेंगे? तो हम लिखेंगे लिंक कोलन CSS। और यहाँ पे मगर CSS किस में है? स्टाइल में है, स्टाइल में है, स्टाइल। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टाइल, है ना, STYLE। ये तो सबको ही पता है ना? ओके। नाउ जब आप ये करोगे तो बिल्कुल ब्लैक दिखा कुछ, और ये सेंटर में आ गया ना सारा। तो टेक्स्ट कलर चेंज करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि टेक्स्ट गायब हो गया, क्योंकि टेक्स्ट है उधर, टेक्स्ट है उधर शो रमजान के नीचे होगा, लेकिन वो ब्लैक कलर का था इसलिए वो दिखा नहीं। जो टेक्स्ट हमारे पास था वो सारा ब्लैक कलर का था ना, देखो मैंने हाईलाइट किया तो वो दिखा, वो है वहाँ पे, लेकिन वो ब्लैक कलर का इसलिए दिख नहीं रहा, ठीक है। तो उसके ऊपर काम हम करेंगे, डोंट वरी, आराम से एक एक करके काम करेंगे। अब हम पहले मेन कंटेनर को पकड़ेंगे। किसको? मेन कंटेनर को। वो कौन है मेन कंटेनर हमारा? इसमें हमारे फोटोज वगैरह। एग्जैक्टली, इसमें हमारा फोटो एंड दिस रमजान एंड P टैग है, उसमें इमेज टैग है, H1 टैग है एंड P टैग है। ठीक हो गया? तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आप मेरा, अगर मैं पूछूंगा किसी को, कोई लड़की मुझे जवाब दें,
कि मुझको इंडेक्स के अंदर जो मेरा ये मेन है, ये जो मेन बॉक्स है ना, ये वाला, ये जो मेरा मेन बॉक्स है, ये इसका नाम क्या है, मेन कंटेनर। मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ इन द CSS। क्या लिखूंगा मैं? लड़की बताएगी कोई? डॉट मेन कंटेनर। माशाल्लाह, नाइस। तो यानी कि मेरी प्यारी बच्चियाँ मेरे साथ ही है, मेन कंटेनर, ठीक है ना, ये हो गया डॉट मेन कंटेनर। अब मेन कंटेनर को जो है उसकी मैं विड्थ जो है कुछ रखता हूँ कि भाई इसकी कुछ विड्थ हम रखेंगे, मैक्सिमम विड्थ जो आपकी होगी, उसकी मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। चलो कर दो कुछ 600 पिक्सल, मैक्सिमम 600 पिक्सल होना चाहिए मेरे को, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यानी कि अब जो है जो मेरा कंटेनर जिसमें इमेज थी उसका 600 पिक्सल आ गया खाली, और ये बीच में आ गया, ठीक है। अब अगर हम ये छोटा भी करेंगे ना स्क्रीन को, अगर हम छोटा भी करेंगे स्क्रीन को, ताकि ये क्या क्या बोलते हैं उसको, जो अगर हम करेंगे कि हमारे मोबाइल पे भी चले, उस पे भी चले, उसको क्या बोलते हैं? आर से, आर फॉर रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव, Responsive. बिल्कुल। यार इसको मैं छोटा करना चाह रहा हूँ ना, इसको पकड़ नहीं आ रहा मुझे, पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ये मैंने इसको छोटा किया, लेकिन ये हट रहा है, ये ये आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसका वो पीछे से है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है क्योंकि ये गया ना यहाँ से आधा, दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव। अगर जितना मैं छोटा करूँगा इसके फिट होना चाहिए, अब ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। कहाँ गया? सो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव भी करूँ मैं, ठीक है। फिलहाल मैंने मैक्सिमम विड्थ कितनी रखी इसको? 600 पिक्सल, ओके। अगर मैं इसको कम रखता हूँ पिक्सल से 550 ये रखते हैं पिक्सल, सो हाउ विल इट गो? ये हाँ ना, ये नहीं जा रहा अभी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी इसके ऊपर काम करेंगे। और फिलहाल मैंने 550 इसकी पिक्सल रखे, और मैं इसका अब पकड़ूंगा नेक्स्ट, पहले पकड़ूंगा मैं, हम मीडिया क्वेरी चलाएंगे थोड़ा सा। मीडिया क्वेरी से एक्चुअली हम ये करते हैं, तो मैं मीडिया क्वेरी चलाऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कैसे करेंगे। थोड़ा सा करेंगे मीडिया क्वेरी के बारे में। मीडिया क्वेरी से हम इसका साइज़ छोटा करेंगे ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए अगर स्क्रीन छोटा है। मैंने मेन कंटेनर पकड़ा, लेकिन मेन कंटेनर में कौन सी पहली चीज़ है बताओ कोई? इमेज है ना, ठीक है, क्योंकि इमेज भाग रहा है कंटेनर से, तो मैं इसको पहले इसके अंदर ही डालूंगा। मैं कहूँगा भाई साहब मैक्स विड्थ जो है आपकी है ना, क्या है मैक्स विड्थ जो आपकी है वो आप 100% रखो, दैट मीन्स इट शुड बी 100% ऑफ व्हाट? हाँ जी, 100% ऑफ वेव हाइट। क्योंकि इमेज जो है, देखो मेरे साथ काम करो ना, ऐसे मत करो कि आप लिख रहे हो गोटा, समझो कि ये जो मेन कंटेनर है उसके अंदर है ना इमेज, तो अगर मैं इमेज को 100% रख रहा हूँ, इट विल टेक द 100% ऑफ द मेन कंटेनर। जो मेन कंटेनर की विड्थ है उसी की विड्थ इसमें आ जाएगी, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने मैक्सिमम विड्थ रखी 100%, और इसका मार्जिन रखेंगे, मार्जिन बॉटम रखेंगे, ताकि ये दूर बगे से सफ़र में 15 पिक्सल का मार्जिन रखेंगे बॉटम में, ताकि जो नेक्स्ट इसके नीचे है ना वो बटन शटन वो दूर भागें थोड़ा सा, क्योंकि बटन आ रहा है ना, चिपक रहा है इसके साथ, तो जो इसके नीचे वो बटन है वगैरह, या उसमें वो H1 टैग है वो थोड़ा नीचे जाए, बटन नहीं, इसमें H1 टैग है नीचे, वो थोड़ा नीचे जाए, ताकि मार्जिन आपने इसका बढ़ा दिया। और यानी कि इसका जो H1 टैग है थोड़ा नीचे चला गया, और अब जो ये है ना इसका जो देखो जो बॉर्डर इसके हैं, इसमें बिल्कुल स्क्वायर बॉर्डर है, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी गोलाई आए, ठीक है। किससे आ जाएगी गोलाई, कोई बताएगा मुझे? अभी एक बंदा बता रहा है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस, वेरी गुड, इट इज़ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस आप कर दो 10 पिक्सल का, अगर 50% कर देंगे तो वो बिल्कुल गोल बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर आपको कोई अगर 50% कर देंगे हम, जैसे आपको कोई पिक्चर है उसको गोल बनाना है, बिल्कुल गोल में आनी चाहिए पिक्चर, तो
50%। तो बिल्कुल गोल में कोई चीज़ आता है ना, जैसे अपने पोर्टफोलियो पे बनाई साइट, उसमें पिक्चर आपका गोल में आना चाहिए, आपकी पिक्चर। तो उसमें हम बॉर्डर राइडियस अगर 50% करेंगे तो वो बिल्कुल गोल बनेगा। लेकिन मुझे उतना गोल इस वक्त नहीं करना है, मुझे इसको थोड़ी सी कॉर्नर्स राउंडेड चाहिए। सो मानो मैंने मार्जिन रेडियस दिया 10 पिक्सल का, ठीक है। अब इसका मार्जिन थोड़ा गोलाई आ गई कॉर्नर्स में। ठीक हो गया। अब किसको पकड़ते हैं, H1 को। हाँ कैसे लिखूंगा मैं H1 को, कैसे करूँ, H1 किसके अंदर है, मेन के तो मैं लिखूंगा डॉट मेन कंटेनर, container. और उसमें जो मेरा कौन है H1। H1. तो क्या करूंगा मैं उस H1 को, भाई कलर दे दो, वो दिख नहीं रहा है ना, Color कलर दे दो वाइट, white. क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड किया आपने तो उसको कलर वाइट दे दो। और क्या करोगे, उसका फॉन्ट तो है ही वो बॉडी टैग का ले रहा है, तो फॉन्ट वेट थोड़ा सा उसका करो ताकि हेवी दिखे, थोड़ा सा 500 कर लो, ठीक है, कमांड एस। सो अब जब आपने वाइट किया तो रमदान करीम आ गया, और थोड़ा मोटा इसका ये जो आ गया वेट बढ़ गया इसका, ठीक है, ओके। 500 पिक्सल, ओके डन। मैं इसको ये जो बीच वाला है ना, मैं इसको क्लोज ही कर लेता हूँ। ओके, ये आ गया मेरा H1। अब कौन बचा मुझे, P टैग। P tag. P टैग भी तो गायब है, तो कैसे करूँगा, वो P टैग भी कहाँ है, वो मेन कंटेनर के अंदर है। मेन कंटेनर के अंदर कौन है मेरा, P टैग। अब मैं P उसको करूँगा, पहला चीज़ क्या करूँगा भाई, वो भी दिख नहीं रहा ना, White. उसका कलर वाइट बना दूंगा मैं ताकि वो दिखे। अगर अब ज़्यादा चुभ रहा है वाइट तो आप ऑफ वाइट कर सकते हो, या ब्लैक को थोड़ा ऑफ ब्लैक कर सकते हो। वैसे मुझे इसमें ब्लैक ही चाहिए, बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए मुझे इसमें, बिल्कुल। अच्छा ठीक, और क्या करना चाहोगे इसमें, थोड़ा सा वो हेडिंग से थोड़ा साइड में आना चाहिए ना, ये हेडिंग के साथ ही आ गया ना बिल्कुल। मैं चाहता हूँ, मैं जिसको बोलूँगा वही बताएगा मुझे, ओनली फाजिक फिरदौस विल टेल मी, ओनली फाजिक फिरदौस। अगर नहीं भी आता कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। सर हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं या हम नहीं, पैडिंग दे टेक्स्ट सकते लाइन हैं? मुझे सेंटर नहीं करना है, हाँ एग्जैक्टली, नाउ यू गॉट इट। मुझे थोड़ा इसको टेक्स्ट को रमदान से थोड़ा आगे लगाना है। सो व्हाट शैल आई डू, Padding. यस यू आर राइट। हाँ क्या Padding. पैडिंग लगाओ, कुछ और लगाओ, कोई बताएगा, कोई और है जो बताए। हाँ जी, पैडिंग लगाऊं या पैडिंग से चलेगा काम, हाँ पैडिंग लेफ्ट। Padding. मैं किस से भगाना चाहता हूँ इसको, हेडिंग से, मेन के कंटेनर्स में जो हेडिंग है। हाँ अगर मैं पैडिंग कहूँगा फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल की, तो आगे थोड़ा सा आगे है ना। या मैं अगर दूसरा काम करूँ, क्योंकि ये अपना P टैग जो है ना उसके बाहर भी काम कर सकते हैं। अगर मैं मार्जिन ही काम करूँगा, ठीक है, मैं मार्जिन कहूँगा कि भाई साहब मार्जिन दे आप दे दो 15 पिक्सल, या जो भी आपकी मर्ज़ी होगी, टॉप एंड बॉटम और 0 पिक्सल। मैं ऐसा करूँगा कि मैं आपको 15 पिक्सल और 0 पिक्सल दे दो मुझे। सो व्हाट विल हैपन बाय दिस, कि मैंने टॉप इसके एंड बॉटम से हाँ चला जाएगा। ये तो फिर ये इसके साथ ही आ गया ना। हम्म, लेकिन टॉप उसका मतलब होता है कि राइट एंड लेफ्ट। अगर आप राइट एंड लेफ्ट भी करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल आप राइट एंड लेफ्ट कर दो, और टॉप एंड बॉटम 15, ठीक है। टॉप एंड बॉटम पहला जो आइटम है वो टॉप एंड बॉटम है 15 पिक्सल, ठीक है ना, टॉप एंड बॉटम, ताकि ये शोरमदान भी भाग गया ना थोड़ा नीचे। और लेफ्ट एंड राइट दूसरा वाला कौन है, लेफ्ट जो 10 पिक्सल है वो लेफ्ट एंड राइट, या 15-15 कर लेते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ऊपर नीचे भी 15, दाएं बाएं भी 15-15 हो गया, ठीक है। या ऊपर नीचे आप 20 भी कर सकते हो, 20 पिक्सल कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा और भागेगा, ठीक है, हो गया, ओके। तो मेन कंटेनर भी हो गया। अब किसकी बारी है, बटन। Button. बटन की, वेरी गुड। अब मेरा बटन बच गया, तो उसका नाम क्या है, कैसे मैं करूँगा, कोई बताएगा मुझे, लड़कियों में से बताए। बटन को मैं कैसे करूँगा, CS में पकड़ूंगा, क्योंकि बटन का नाम है BTN। और देखें ये अभी सिर्फ मेन कंटेनर की बात हो रही है, इस बंदे की बात हो रही है,
है ना। इसका नाम क्या है, BTN, क्लास का नाम है BTN। तो कैसे करूँगा मैं यहाँ पे, डॉट BTN सर। लड़कियाँ बताइए यार, मोटी आवाज़ क्यों आ रही है। डॉट BTN। डॉट BTN क्या करना चाहोगे, लड़कियाँ बताएंगी। BTN क्या करना चाहोगे भाई, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मेरे को डिफरेंट चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे दो कुछ। हाँ पता नहीं आज खांसी हो रही बहुत। वाइट, चलो वाइट ही दे दो। तो बैकग्राउंड कलर वाइट आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो बैकग्राउंड कलर वाइट है, शो रमजान जो है ना बिल्कुल चिपक रहा है बॉर्डर के साथ, थोड़ी गैप आनी चाहिए ना। तो बटन के अंदर अगर गैप करनी है, अगर बटन के अंदर गैप करनी है, दैट इज द पैडिंग, पैडिंग है ना। क्योंकि मुझे जो बटन के अंदर गैप करनी है ना, मुझे यहाँ से पावर आ गया मेरे को, इसमें सर्दी लग गई बहुत यार, इसलिए खांसी आ रही है। सो मैं कह रहा हूँ कि बटन के अंदर जो शो रमदान है ना उसमें गैप लगानी है, ठीक है ना। तो वो किससे आ जाएगा, पैडिंग से आ जाएगा ना। पैडिंग सो टॉप बॉटम उसमें भी पैडिंग करेंगे, क्योंकि अगर मैं मार्जिन लगाऊंगा यहाँ पे तो वो भागेगा बाहर से, वो भागेगा, बटन भागेगा आगे पीछे। अगर मैं मार्जिन लगाऊंगा फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल का, तो वो चारों तरफ से 20 पिक्सल भागेगा, लेकिन वो शो अंदर वाला टेक्स्ट वहीं है जहाँ था। तो मार्जिन यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ पैडिंग काम करेगी। और कितना आप करना चाहते हो पैडिंग, पहले टॉप एंड बॉटम बताओ कितना करोगे। टॉप एंड बॉटम, पहला जो है टॉप एंड बॉटम, सेकंड जो है लेफ्ट एंड राइट, है ना। मानो 15 पिक्सल आप दे दो टॉप एंड बॉटम, और स्पेस कामा नहीं लगाना, स्पेस 20 पिक्सल लगा दो राइट एंड लेफ्ट। तो अब देखो इसमें जो है ये शो रमदान जो है ये भाग गया लेफ्ट एंड राइट और टॉप एंड बॉटम। पहले टॉप एंड बॉटम आपने कितना कर दिया 15, और फिर आपने 20 लगाया, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, ठीक है ना। इसमें लेकिन कुछ मज़ा नहीं आ रहा, इसका थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज़ कर लेते हैं, फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल कर दूँ, थोड़ा सा मोटा लिखेगा, ठीक है। शो रमदान व्हाटएवर। और करना चाहिए कुछ इसमें। हाँ एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि जब बटन के ऊपर मैं माउस ले रहा हूँ ना तो पॉइंटर दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कहूँगा कि भाई जो कर्सर है CURSOR, कर्सर पॉइंटर बना, यानी कि जब मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब आपको हैंड दिख रहा है, जब मैं इसके ऊपर ले रहा हूँ तो हैंड साइन आ गया ना। सो कर्सर बना रहा हूँ मैं पॉइंटर, ओके जी, ठीक हो गया। तो ये मेरा बटन आ गया। मैं एक और चीज़ भी कर सकता हूँ कि भाई साहब जब बटन जो है ना, जब इसके ऊपर हॉवर होगा, यानी कि जब आप इसके ऊपर माउस लगाओगे तो इसका कलर चेंज कर लेना, यानी कि जब मैं माउस ले जाऊँगा इसके ऊपर बटन का कलर चेंज कर देना। तो मैं उसके लिए क्या कहूँगा कि जो ये बटन मेरा है, तो डॉट BTN कैसे नाम करूँगा, डॉट BTN, एंड फिर कोलन कहूँगा हॉवर, कि भैया जब इसके ऊपर आ जाओगे और इसको हॉवर हो जाएगा तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करो, बस मुझे थोड़ा सा एनिमेशन दिखेगा, बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन बना देना, बस आई वांट ग्रीन, ठीक है। ग्रीनिस्तान, बिकॉज ग्रीनिस्तान वी ऑलवेज लव, यू नो। नाउ वी गो हियर, तो जो ही मैं इसको इसके ऊपर ले जाऊंगा तो ग्रीन दिख रहा है बटन, ठीक है। हॉवर करने से ग्रीन दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें ये एनिमेशन इफेक्ट आ गया ना थोड़ी सी, ठीक है। तो हॉवर करने से इसका, मैंने क्या कहा, जो डॉट BTN है भाई साहब, जो बटन है, क्योंकि नाम उसका BTN है तो डॉट BTN इसी कॉल करूँगा, जैसे अभी एक बच्ची ने बताया। उसके बाद मैं कहूँगा भाई अगर उस पर हॉवर हो गया, आपने उसके ऊपर लिया, तो आप ग्रीन बना देना उसका कलर, ठीक हो गया सर। अभी अगर हम इसको छोटा करेंगे, ये पकड़ में नहीं आ रहा मुझे, इसका मीडिया क्वेरी करना पड़ेगा ना। नहीं हो रहा है छोटा, थोड़ा देखो अब हो रहा है छोटा, क्योंकि मैंने इसको जो है कहा ना कि भाई तू 100% ऑफ ये हो जा जो तेरा क्योंकि इससे पहले जो हो रहा था यहाँ पे, जब मैंने इसको यहाँ पे कहा कि मैक्स विड्थ जो मैंने इसकी 100% बता दी ना, कि भाई जो कंटेनर है उसी के हिसाब से आ जा, वरना क्या होता था कंटेनर छोटा हो रहा था, पिक्चर बड़ी हो रही थी, पिक्चर तो इतना पाई नहीं जाए। अब जो पिक्चर है जितना कंटेनर छोटा हो गया तो पिक्चर भी छोटी हो जाएगी, ये खुद ही ये ना
ये खुद ही हो गया, ये कौन सा, ये खुद, अब देखो ये खुद हो गया, ये क्या बोलते हैं इसको, रिस्पॉन्सिव। अब देखो ये जो पिक्चर है ये थोड़ी श्रिंक हो रही है ना अब, क्योंकि कंटेनर छोटा हो रहा है। देखो कंटेनर छोटा हो गया तो पिक्चर भी छोटी हो रही है कि नहीं। सो ये थोड़ा रिस्पॉन्सिव बन गया। तो मीडिया क्वेरीज हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये तब भी रिस्पॉन्सिव बन गया। अब मैं थोड़ा सा इसको पैडिंग लगाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। इसको हम लगाएंगे पैडिंग। क्या लगाएंगे, ये किसकी बात हो रही थी, मुझे पैडिंग किसको लगानी है, मेन कंटेनर को, मेन कंटेनर को ही पैडिंग लगाएंगे। अब क्या बोल रहे हैं आप, किसको लगाऊंगा पैडिंग बताओ, ताकि ना वो थोड़ा सा ये आ रहा है ना बिल्कुल स्क्रीन के साथ, ताकि स्क्रीन के राइट में आ जाए। मेन कंटेनर को लगाऊंगा ना, किसको लगाऊंगा, और क्योंकि मेन कंटेनर के आगे होना चाहिए ना। पैडिंग 20 पिक्सल के लगा लो, ताकि देखो अब मैं जब इसको छोटा करूँगा, भाई चलना यार, अब थोड़ा ये स्क्रीन से थोड़ा देखो, स्क्रीन से 20 पिक्सल की दूरी पे है ना, जो ये पिक्चर है वो हमेशा 20 पिक्सल की दूरी पर है। अब तो ये रिस्पॉन्सिव भी बन गया, हमें मीडिया क्वेरी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो क्योंकि मैंने इसको कहा जितना कंटेनर छोटा हो गया तो उसी के हिसाब से अपने आप को भी डाल देना। आपकी विड्थ अपनी जो है वो आप कंटेनर के हिसाब से लगा देना, 100% ऑफ द कंटेनर। तो और ये देखो बीच में जो है ना ये 20 पिक्सल की पैडिंग भी आ गई। अब थोड़ा दूर भाग रहा है ना ये, तो जितना स्क्रीन छोटा हो रहा है, मोबाइल का स्क्रीन आ रहा है, उतना पिक्चर भी छोटी हो रही है। लेकिन मैं और भी कर सकता हूँ यूजिंग द मीडिया क्वेरीज। बेटर ये असल में करना होता है यूजिंग द मीडिया क्वेरीज। मैं बताऊंगा वो बाद में कभी। अभी फ़िलहाल अब मेरे ख्याल तो ये हो गया हमारा, कौन सा हमारा ये वाला हो गया ना, क्या हो गया हमारा, बटन। हाँ बीटन। अब हमारा कौन सा, अब Hide किसको करो। करना है, वी हैव टू नॉट बटन टेक, पे हाइड करना है। किसकी किसकी हाइड करना है, बटन से ना इमेज हाइड होनी चाहिए, वीडियो प्ले होना चाहिए। हाँ फिर तो अभी तो हमने स्टाइल ही नहीं किया ना इसको। इसका नाम क्या है, करना है। अब मेरा है ना इस सेक्शन, इसका नाम है BTN मगर इसका कंटेनर। नाम- इसका नाम BTN कंटेनर क्यों लिखा मैंने इसको, इसका इसका नाम- द नेम ऑफ दिस शुड बी द वीड कंटेनर, राइट, वीडियो कंटेंट। या द वीडियो कंटेनर, इट शुड बी द वीडियो, बिकॉज इसमें वीडियो है ना, और एक वो क्रॉस आइकन है, ठीक है। आई थिंक आई स्टॉप हियर बिकॉज इट्स 10:37 नाउ एंड आई एम नॉट फीलिंग लिटिल वेल, थोड़ा सा हेडेक आ रहा है मुझे, एंड असल में सर्दी लगी मुझे, यहाँ पे गर्मी का हिसाब नहीं था इस कमरे में। एंड वी हैव 1 hour टाइम इज एनफ। वी विल कंटिन्यू दिस क्लास एंड वी विल वर्क ऑन the video container by tomorrow, and we try to see how JavaScript will come into play. Okay, and we'll also see some media queries also. Okay, any questions till now? I'm having a little headache actually. Any questions? Okay, then see you tomorrow inshallah ta'ala. We complete this tomorrow, and also you will understand why we need JavaScript, because we have a logic. We will use the media queries also, which we'll take later on in a big detail, but you will have little idea, so you will be prepared at that moment. See, I could have shown, you go video tag, you go image tag, and this is that, but this whole course I want is that you have kind of a project mentality. You have a mentality the application, क्योंकि वरना टैग्स तो पढ़े होते हैं बंदों ने, लेकिन वो उनको अप्लाई कैसे करना वो पता नहीं होता, ठीक है ना। So I will try my best to have some live projects every day, so that you have a great practice and you understand each and every कि मैं ये वीडियो को कैसे इस्तेमाल करूँगा अपने इसमें। And in the meantime I will tell you the best practices also, how to do the best practices of the CSS, of HTML and all that, ठीक है ना। So anyways, see you guys tomorrow. 1 hour is enough. See you guys tomorrow inshallah ta'ala, okay? But stay, continue and do ask questions if you have any questions. Allah Hafiz.